Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying good health. Students, this tutorial is made for class 8 and this is your English teacher Halima Sadia with the lecture of week number 14. So students, this week we are going to read the pages of student book, page number 55 from 155 to 158. And that is from chapter number 4 and extended reading 5, and page number 55 deals with the proposal, and extended reading 5 deals with the reading of a novel, A Little Women. After completing the both these topics, you will be able to write a formal email to the principal of the school for permission to organize literary festival week, and you will also be able to read and comprehend the story and include the interesting and difficult words to your vocabulary bank. So students, we will start with lesson number 1, that is about extended reading 5, a classical novel, A Little Women, that is on page number 155 to 158. So students, this novel is written by Louisa May Alcott, and Louisa May Alcott was an American author whose best known work, Little Women, is a book based on her own childhood growing up with her sisters in 19th century America. लोइजा मेरेकॉट अमेरिका में रहती है और उसका बेस्ट नोन नावल है लिटिल वुमेन, जो कि उसने लिखा है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ पे, जो अब अपनी बहनों के साथ उसने जो चाइल्डहुड गुजारा उस पे बेस ये नावल है. द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ जो. अब ये जो है इस नावल के अंदर, जो वो लोइजा मे एलकॉट खुद है, हु एलकॉट बेस्ड ऑन हर सेल्फ एंड हर सिस्टर्स मैग, बेथ एंड एमी. There were 4 sisters. The other 3 sisters' names are Meg, Beth, and Emmy. Emmy, the youngest sister, is invited to travel by ship to Europe with her aunt, uncle, and cousin Flo. Emmy को उसके aunt, uncle और cousin Flo invite करते हैं यूरोप में. And Emmy क्या करती है? She writes a series of letter to her sisters, writes about her experiences in Britain, France, and Germany. ठीक है, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी जो है वो यूरोप की सिटीज़ है, और वहाँ पे जब वो रहती है तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस को अपनी सिस्टर्स के साथ एक लेटर के ज़रिए शेयर करती है. और वो सारी चीज़ें आपको बता कौन रहा है? जो बता रही है, जो मतलब लोइसा मे एलकॉट बता रही है आपको कि यूरोप में रहते हुए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी में रहते हुए आपको उसको किन किन एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ा है. So the other 2 pages also deal with the same things. This book is written by Louisa May Alcott and is based on the childhood experiences with her sisters. In this extract, part of the novel, Emmy, the younger sister, writes about her experiences when she visits Britain, France and Germany. तो सबसे छोटी सिस्टर है एमी, वो डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट करती है और फिर अपनी सिस्टर्स के साथ लेटर्स के ज़रिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द स्टोरी yourself, and you have to find out the difficult words, underline the difficult words from the novel, and then find out the meanings of difficult words from the dictionary or from the internet. And then if you find some words interesting, you have to add these words in your vocabulary bank. The interesting words with the meanings and the difficult words with the meaning in your vocabulary bank. And there is no written work, you just have to read out the novel and you just have to add the interesting and difficult words in your vocabulary bank. Now students, come to lesson number 2, that is about writing a proposal, that is on page number 55 of student book. So there is it talks about writing of a proposal. Students, जब भी हम कोई फॉर्मली, फॉर एग्जांपल हम कोई लेटर लिखते हैं या कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, कोई भी प्रपोजल लिखते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बात का हमें ख्याल रखना होता है कि हम नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर्मल ईमेल्स के लिए, लेटर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए. लाइक फॉर्मल होने की एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि वी विल यूज़ we will not use contractions. Contractions mean we will not use the short form of words like cannot, like would not. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स को हम यूज़ नहीं करेंगे.
एंड इसके अलावा हम हे, ओए, वाह, व्हाट्सअप, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल हम फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। हम प्लीज़ करके, रिक्वेस्ट करके, डियर, रिस्पेक्टेड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम और हर फॉर द परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ लिटरेरी फेस्टिवल वीक फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने उससे अपने स्कूल के अंदर एक इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एक लिटरेरी वीक को ऑर्गेनाइज करने की परमिशन लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज स्पेसिमन गिवन। एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक ईमेल दिखाई गई है और इस ईमेल में ये ईमेल जो है ये आपके पेज नंबर 55 से ही ली गई है। ठीक है, तो इस ईमेल को पहले ज़रा रीड आउट कर लेते हैं कि एक ईमेल को लिखने के मेन कंपोनेंट्स, मेन पॉइंट्स क्या होंगे, किन किन पॉइंट्स के साथ आपकी ईमेल स्टार्ट होगी, किससे आप इसको कंटिन्यू करेंगे और किससे आप इसको एंड अप करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद टू and from. To to whom this email is written, so you will definitely write the principal, and from definitely you will write your own name, and then the subject will be written proposal for an English film week. This is the proposal for an English film week, but you will write the proposal for a for an English language festival. So then you will write dear principal, dear sir, and look at the points that are written aside of this image, like introduce yourself. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप नोट करें तो आपके जो इमेज है इसमें इंट्रोडक्शन का वाला पैराग्राफ कौन सा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इन ग्रेड 8th रिगार्डिंग अ प्रपोजल फॉर अ इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल एट स्कूल। ये आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आ जाएगा, जैसा कि इस ईमेल में आपके पास लिखा हुआ है। गिव योर प्रपोजल एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट लिटरेरी वीक। ठीक है, अब जो सेकंड पैराग्राफ है इस ईमेल का, उसमें इंग्लिश फिल्म वीक के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। आप इसमें आप जो अपनी ईमेल लिखेंगे उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक फेस्टिवल है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। मेंशन द टेंटेटिव डेट्स फॉर द लॉन्ग वीक एक्टिविटी। ठीक है, आप उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि आप बताएंगे कि वी आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ परमिशन टू सेलिब्रेट दिस वीक विद इफेक्ट फ्रॉम फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे फ्रॉम 24 अगस्त टू 28 अगस्त, कि 24 से लेकर 28 अगस्त तक हमें दिन दिए जाएँ जिसमें हम ये इस वीक को सेलिब्रेट कर सकें। और साथ आप उसकी टाइमिंग भी लिखेंगे कि आपको किस टाइम पे जो है वो आपको जो स्कूल का ये वाला एरिया है, कोई क्लास है, कोई स्पेसिफिक जगह है स्कूल की, वो आपको फ्री चाहिए या आपको परमिशन चाहिए कि आप वहाँ पे ये इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। और एंड प्रपोज विच एक्टिविटी विल बी इंक्लूडेड, आपने बताना है कि आप उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे। आप उसमें कोई बुक्स रख रहे हैं या कोई इंग्लिश मॉडल्स रख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी इस जो फेस्टिवल होगा उसका पार्ट होंगी। होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सबसे लास्ट पैराग्राफ देखें। आई वुड बी टेकन टू डिस्कस द प्रपोजल विद यू, वुड दैट बी पॉसिबल। ठीक है, ये अब आप एक प्रिंसिपल से जो है ना वो एक परमिशन मांग रहे हैं और उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मांग रहे हैं कि प्रिंसिपल आपको इस बात की परमिशन दे दे। अब आपने क्या करना है कि एक रफ सा ड्राफ्ट बनाना है, आपने अपनी ईमेल लिखनी है और उसके बाद ईमेल लिखने के बाद अपने टीचर को चेक करवानी है वो ईमेल, और ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स हो तो आपके टीचर वो मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकें। एंड रिमेंबर टू राइट इन पैराग्राफ्स डेफिनेटली। जैसे कि आप इस ईमेल को देखें तो इसमें भी आपने तकरीबन 5 पैराग्राफ्स में बात की है, तो 5 पैराग्राफ्स को डिस्कस करने हैं आपने, जिन पैराग्राफ्स में आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा और आपका प्रपोजल क्यों इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आ जाएगा। फिर टेंटेटिव डेट्स, टेंटेटिव बेटा बोलते हैं कि अगर आपने अपनी तरफ से एक डेट बताइए ना प्रिंसिपल को, तो अगर उसको वो सूटेबल नहीं लगेगा वो डेट, मतलब एक
टेम्परेरी डेट्स आप बोल रहे हैं, टेम्परेरी आपने पक्की फाइनल फिक्स करके आपने डेट्स नहीं देनी, आपने एक टेंटेटिव डेट्स देनी है, टेम्परेरी डेट्स देनी है। फिर प्रिंसिपल को अगर बेटर लगा तो वो आपको उन डेट्स पे ओके कर देगा, अदरवाइज हो सकता है अगर वो परमिशन दे देता है तो कोई डेट्स आपकी चेंज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एक पॉइंट, एक पैराग्राफ हो जाएगा। प्रपोज विच एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेगा एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स को डिस्कस करेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने अपनी ईमेल कंप्लीट करनी है और अपनी टीचर को दिखाना है, पैराग्राफ्स में मस्त लिखना है। और आपने ये इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपके वर्ड्स या एक्सप्रेशंस हों वो फॉर्मल हो, मतलब आपने बिल्कुल फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हुए करना है। ख़ास तौर पे आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करने, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। जैसे कि आप कहते हैं कैन नॉट को आप यूज़ करते हैं, कांट, वुड नॉट को यूज़ करते हैं, वुड नॉट वॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने नहीं करना। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर ईमेल, ये पॉइंट्स बताए गए हैं। जो टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट एंड डेट हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके इन पॉइंट्स के अलावा हैं। एंड पे आप लिखेंगे योर सिंसियरली, यहाँ पे तो पिचमैन वोटाना लिखा हुआ है, आपने अपना नाम लिखना है। योर सिंसियरली आप कहाँ आपका नाम क्या है वो आप अपना नाम लिखेंगे। और मिड के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट द ईमेल नीट एंड क्लीन so that it could be acceptable by the principal, and it could also be interesting. It could be there should be some interesting points जो कि आपके प्रिंसिपल को अपील करें कि इससे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। Thank you so much students, stay blessed and stay safe. Allah Hafiz.